Finally, tomorrow my helper is coming. बढ़िया है। घर के काम में ऐसे समझ ही नहीं आता घर के काम उसमें तो। Actually, टाइम भी तो मिलना चाहिए ना. We are waiting for Ria actually. व्हेन आई वाज राइटिंग नो, तो लिखते लिखते थोड़ा सा वो इमोशनल टाइप होने लगा था हल्का, और फिर मुझे लगा कि जब भी मैं इसको बाद में देखूंगी मुझे देख के रोना आ जाएगा, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना जरूरी है। नहीं बट इट्स ओके. मतलब अगर रोना आ भी जाए तो इट्स फाइन. मतलब अभी जैसे ना रिसेंटली शायद मैं पता नहीं किससे बात कर रही थी. तो लिटरली टोल्ड मुझे somebody said कि मुझे ना रोना आ रहा है तो मैं क्या करूं, मतलब कैसे रोकूं. तो आई वाज लाइक क्यों रोकना है. मतलब इट्स लाइक अगर सडनली आ रहा है that simply means that your body is now saturated on that point, and your body is really wanting to get relieved from it. तो कभी ऐसा आपको लगे कि आई एम क्राइंग एंड आई एम क्राइंग फॉर नो रीजन. So maybe you don't know it, but your inner conscious knows that why is that crying, right? So let it be. आ रहा है रोना, रो. इट्स ओके. आपको क्यों ही मतलब अपने आप को रोकना है ना. योर बॉडी इज वांटिंग इट कि भैया मुझे रिलीव कर दो इस चीज से. इट्स फाइन. और वैसे भी मतलब ये एफर्ट तो कभी भी नहीं लगाना कि मुझे रोना ना आए, मैं इमोशनल ना फील करूं. करो. बिकॉज मे बी यू नो समटाइम्स क्या होता है, अंडर द कवर ऑफ दिस फैक्ट कि आई एम अ ब्रेव पर्सन, हम कभी कभी अपने इमोशंस को रोक देते हैं. right? And I've seen this. In fact, my own daughter's example, like when she was growing up. So the helper that I had before the one that I have now, so she was very much emotionally attached to her. So I remember when she has to leave, uh, there were a lot of reasons that she left, but it all started from when she started, answering me back for the things. So I remember one day she was behaving very badly. So होता ना कि आप एक बड़े गुस्से में होते हो कि यार हाउ डेयर यू कैन स्पीक टू मी लाइक दिस. सो मैंने उसको गुस्से में बोला कि यू जस्ट लीव द हाउस राइट अवे. आई डोंट वांट यू इन माय हाउस. So she had this thing in her ki, she should not leave. But then Mama has said it, and but I love her. And in that whole confusion, she just stopped herself from ki, how can I cry? I don't know where she learned it from. That maybe if I'm crying, maybe it will be taken as a weakness or something. I really don't know why she thought that, but she had that thing that she suppressed it. Ki, मैं रोंगी नहीं. And somehow I judged it. She is into that emotional thing, but she's not letting it out. So I just literally told her that, are you feeling like crying? And firstly, she completely denied it. No, no, not at all, not at all. And very politely, I just told her that it's okay. If you feel like crying, you can cry. And just the moment I said her that, it's okay, you can cry, she bursted out like anything. And I was like, यार 6 year old, मतलब I have learned it actually from her only कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को दो. ये चीजें मैंने सुनी भी थी, इस चीज को मैं मानती भी थी, but then that was an like a very demo kind of a thing in front of me, live हो रहा था वो. I was like, it's okay. Why did you stop yourself if you cried? So she started fighting with me. कि, why did you tell Didi to go? I don't want her to go. I don't want her to leave. And that was the moment that I realized, oh my God, matlab, she's very much, emotionally attached to her. So now I have to be very careful of that. That day I realized it, that, now I have to swipe the duties. I have to get somebody else on her place. But then at the same time, I became very conscious of this, that I cannot do it in a way which affects her emotionally. And it took me good 6 to 8 months to replace, just because of my daughter, that I realized that अगर अभी बचपन में उसके दिमाग में ये चीज रह गई ना, तो मे बी आने वाले टाइम में she will have this feeling that my mother was the reason that I was made apart from the one I loved. Because for her, और वैसे भी मेरे घर में कभी भी ना ये सिस्टम मैंने स्टार्ट ही नहीं करा that she's a maid or she's a helper or something.
whoever has ever come to my place is like a family member. And even now she comes to meet her and everything. But then it gave me a lesson that, I have to be very particular about such things. And after that, it took me a long time to make her realize this, that it's absolutely okay. If you feel like crying, it is totally normal. मतलब उसके लिए ना मुझे बहुत बार ऐसे intentionally उसके सामने रोना पड़ा. किसी मम्मा को रोना आ रहा था and she's crying in front of me. Because it is absolutely normal. Like the way I can laugh in front of you, it is absolutely normal if I cry also. And it definitely took her some time to absorb this. कि अच्छा मम्मा सच में, मतलब मैं सच में रो सकती हूँ. मतलब she had this कि आप सच बोल रहे हो कि you're just saying it for the sake of saying it. It took her some time to believe it कि हाँ, if I'm crying, if I feel like crying, I can cry. So sometimes we don't know how do we pick that up. Really. Also teachers say कि brave girls don't cry, don't cry. हाँ, of course. टीचर से घर में relatives कम कभी बच्चे को चोट, अरे you're a brave bird बच्चा, why are you crying? No, 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 don't cry. So somehow we imbibe get that thing कि अच्छा मतलब इस कुछ गलत ही होगा रोने में जब हम रो रहे हैं. So that's true. We learn it definitely from our environment. चलो on that note, by the time she comes, because आज बहुत लंबी वाली थी. 10:30 तक अपन हो जाएंगे ना फ्री, मेरा क्लाइंट. नहीं हम 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे बिकॉज मैं बस आज और कुछ नहीं करवा रही हूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी डीप. आई थिंक शायद कृतिका ने तो किया जब हम वॉल्ट डिज्नी कर रहे हैं. बस अभी इतना ध्यान रखना कि जब भी हम ये स्टार्ट करें आपको अपने ही रूम में ना थोड़ी ओपन स्पेस रखनी है. एंड सेकेंडली डोंट थिंक अबाउट दैट एट ऑल कि मैं आपको देख पा रही हूँ या मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ. आप कैमरा के विद इन हो या कैमरा से बाहर हो. राइट. रीजन बीइंग कि आपको मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए. That's the only thing, right? Other than that, it's absolutely fine. Let me see. Okay. So today we are going to do the future alignment. हमने लास्ट टाइम भी फ्यूचर वाला ही किया था. लास्ट टाइम हमने पास्ट का किया था, राइट? तो अभी हम वी आर डूइंग द फ्यूचर अलाइनमेंट नाउ. जो हमारी थंब टेक्निक थी, दैट वाज आल्सो फ्यूचर अलाइनमेंट, क्योंकि हम लास्ट में बिल्कुल आगे चले गए थे ना. That how is your life after a few years. So ऐसे ही now today in the future alignment, we will be first of all, we need to understand this. Okay. So this is the one we left at. Okay. So now let's awaken the dreamer within. Right. So today we are going to understand about the inner critique. Okay. So what happens is, okay. So first of all, we need to awaken the dreamer in us. See, we all have a dreamer in us, right? We all, because if we do not have, मतलब हम जब पैदा ही हुए थे, as a child, we had dreams. In fact, we had weird dreams. We truly believed in Santa Claus, fairies, and magic. We truly believed in those things, right? That someday maybe a fairy will come to my life and then something will happen, something magical will happen. And we believed in all of that stuff. We actually believed in those stories, right? तो हाँ, अब ये अलग बात है कि उन स्टोरीज से हमने अपने आप को क्या बिलीवेबिलिटी दी. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल इट माइट बी पॉसिबल ना कि आपकी स्टोरी में ये भी हो सकता है कि यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू समबडी एल्स, कि कोई आएगा और आकर मेरी जिंदगी बदलेगा, या लाइक मेरे से तो नहीं होने वाला टाइप्स. ऐसा भी हो सकता है. देयर आर पीपल जिन्हें लगता है कि यार मैं तो नहीं कर सकता. मे बी समथिंग विल हैपन, और मे बी समडे somebody will come and will tell me something, or maybe will do something for me, and there will be a miracle, right? But the point is, when you believe in something like fairies and Santa Claus for so many years of your life, you can actually start believing in your own self also a little more. We have already started doing that, but then
today is the time when we do it a little more. There is no harm in believing your own self, right? So when you believe in so many other things like magic, right? So that ways, today we are going to understand that we all have a dreamer in us. हाँ, उसकी strengths क्या है? That's a complete different story, right? और उसके weaknesses क्या है? That is also a different thing, right? Now, when you dream something big, जितना बड़ा आपका ड्रीम होता है, उतना ही बड़ा आपका क्रिटिक भी होता है, इनर क्रिटिक, right? There is an inner critique in you. And now what is this inner critique? This inner critique comes in you like an audio, right? And tells you that, I don't know I'll be able to do it or not. Is it really possible? What if I fail? What if it doesn't happen? ये क्या है? ऑडियोज ही चल रहे हैं ना, right? So this inner critique is just ready to come up and trouble you. The moment you see a big dream, it comes up, starts troubling you. It sets you in that low vibration. आपको stress देता है, anxiety देता है. But he's not a bad guy. He is not at all a bad guy, right? I always say that positive thinking is a good thing. But sometimes it's not about positive thinking. It's about right thinking, right? देखो, there are a lot of times when you have to think negative, right? बहुत बार ऐसा होता है, आपको नेगेटिव सोचना पड़ता है when it is about something, अगर आपको कोई एक बड़ा डिसीजन लेना है which is money related, right? When your money is at stake, या फिर somebody has to get married, somebody has to decide on the relationships, कोई क्रिटिकल सिचुएशन में अगर आपको एक डिसीजन लेना है, स्टॉक्स खरीदने हैं, किसकी बात सुननी है, सो ही इज नॉट अ बैड गाय. हमें उसकी हेल्प की जरूरत भी पड़ती है. एट टाइम्स वी नीड हिम ऑल्सो. बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ डिसबैलेंस बिटवीन द टू. जो हमारा ड्रीमर है और जो हमारा क्रिटिक है, वो बैलेंस में नहीं है, राइट? तो एंड स्पेशली जब हमें कोई एक्शन लेना होता है, right? Especially when we have to get some decision to be taken, और वो decision तो ले लिया, पर अभी उस decision पर act करना है. That is the time जब हमें सबसे ज्यादा इसके balance की जरूरत पड़ती है, right? So this tells us so now we need to take care of this inner critique, right? How? देखो, it is very evident कि अगर हम एक ड्रीम भी देख रहे हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ E2 हियर. कुछ बन रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली उसके कुछ विजुअल्स होंगे, कुछ ऑडियोज होंगे, कुछ केज होंगे, कुछ काइनेस्थेटिक्स होंगे, कुछ फीलिंग्स होंगे, राइट? सो नाउ जब विजुअल्स हैं, लाइक इनफैक्ट हम हमेशा बोलते हैं दैट सपने देखने हैं. वी सी द ड्रीम्स, right? Isn't it? So we can relate to that visual content, to the dreamer. जो हमारे अंदर का ड्रीमर है वो कौन है? जो विजुअल्स में है. ऐसे ही बोलते हैं ना, ये जगह ड्रीम्स देखो, ये तो नहीं बोलते ना ड्रीम सुनो. हम ड्रीम्स को देखते हैं, विजुअल्स हैं, कुछ फ्यूचर विजन्स हैं. जब हम अपने कंपनी की भी बात करते हैं, अपने प्लान्स की भी बात करते हैं, तो हम बोलते हैं व्हाट इज योर विजन. अब वो विजन कहाँ से आएगा? देख रहे हो ना कुछ कि मैं कहाँ पहुंच गया, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कैसा मेरा लाइफस्टाइल है. दे आर ऑल विजन्स. तो ड्रीम इज व्हाट? टोटल विजन्स, वी, राइट? देन कम्स द क्रिटिक. नाउ क्रिटिक इज अ टोटल ऑडियो. देयर इज अ साउंड हियर. सेल्फ डाउट क्या है? जब भी किसी चीज को लेकर आप डाउट में चले गए, जब भी किसी चीज को लेकर आप डाउट में चले गए, राइट? सो व्हाट इज इट? It's a sound here. Will I be able to do it or not? Is there any risk involved? क्या benefits हैं? सही है, गलत है, होगा, नहीं होगा? All that self-talk is a total audio here, right? And then comes the K. Now, K is what? Feelings. K is where in the body. जो kinesthetic होता है, that is always in the body. और action किसको लेना है? Body को. Who has to take the action? The body, right? So action taker, the realist
हमारे 3 आइडेंटिटीज हैं, ड्रीमर, क्रिटिक एंड द एक्शन टेकर, जिसको हम रियलिस्ट भी बोलते हैं, राइट? तो अभी एक्शन टेकर कौन है? दिस बॉडी। तो फीलिंग जब तक नहीं आएगी एक्शन टेकिंग में नहीं जाएंगे। सो व्हेन समथिंग इज ड्रीम्ड ऑफ, then there is a critique between the dream and the action taker. एक तरफ हमारा ड्रीम है, दूसरी तरफ वो एक्शन टेकर है जिसने एक्शन लेना है, और बीच में खड़ा है एक बड़ा सा क्रिटिक, राइट? सो इफ द क्रिटिक इज रियली बिग, अब अगर जस्ट अ मोमेंट, Okay. तो action taker, yeah. So we were talking about action taker. Now, so where is the action taker? In the body, right? Now, जब आप कुछ ड्रीम करते हो, यू नो, तो एक क्रिटिक बीच में आ जाता है। अब ये क्रिटिक जितना बड़ा होगा उतना ही आपका एक्शन डिले होगा। If the critique is really big, you are not going to take the action. You will never take that action. Because I always say कि जो biggest frustration है आज की डेट में humans की, right? That is कि वो evolve तो हो रहे हैं, like we are all educated humans, right? So what is the biggest issue then? That first we gather knowledge, हमें knowledge हर चीज की है. Now at times we think that यार सब कुछ तो पता है मुझे, क्या नहीं मालूम? अब किसको नहीं पता है that you know I should exercise, I should go to gym, I should be fit, I should eat healthy. ये सब बातें किसको नहीं मालूम? I should meditate. We know all of this. So we are all evolved beings. But then the point is, are we really doing it? There are people who are not able to take an action. So why is he not able to take an action? Because we are not at the action level only. क्योंकि ड्रीम यहां हुआ है, राइट? कि आई वांट दैट बॉडी, फिट बॉडी चाहिए, स्लिम बॉडी चाहिए, एक परफेक्ट फिगर चाहिए, राइट? बट देन द क्रिटिक इन यू कम्स इन बिटवीन एंड ही टेल्स यू दैट सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और बैठ जाओ, राइट? क्योंकि वो आपको करने नहीं देगा ना। अगेन पेन एंड प्रिंसिपल का पेन एंड प्लेजर का प्रिंसिपल बीच में आएगा, उसको पेन दिख रहा है वहां पे। तो अभी हमारा काम क्या है? इस क्रिटिक को प्लेजर मोड पर लेकर जाना, राइट? उसको बेटर स्टोरीज देना, क्योंकि उसके ऑलरेडी पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है, राइट? क्रिटिक के पास इनफैक्ट सबसे बड़ी स्टोरी है, सबसे बड़े एक्सपीरियंसेस है आउट ऑफ द 3। क्योंकि ड्रीमर ड्रीम कर रहा है, इट्स अ गुड थिंग। एक्शन टेकर ने करके नहीं देखा, इसीलिए उसको पता ही नहीं है, एविडेंसेस नहीं है उसके पास कोई। लेकिन क्रिटिक जो है उसकी स्टोरी बहुत बड़ी है, राइट? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंसेस है कि पिछली बार ऐसा किया था तो ये हुआ था, पिछली बार ऐसा किया था तो ये हुआ था, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। उसके पास अपने एक्सपीरियंसेस पड़े हैं, राइट? तो एक्शन टेकर तक की जो बारी है वो आती नहीं है। नाउ सी, सो द एक्शन टेकर इन यू डज नॉट टेक द नेसेसरी एक्शन, क्योंकि उस तक वो सिचुएशन क्रिटिक पहुंचने ही नहीं देता। सो नाउ व्हाट डू वी रिक्वायर? अब इज दिस critique a bad guy? No, he is not. None of these 3 things are bad at all. The only idea is कि जो ये inner critique है उसको म्यूट करना है। एक हमने उस दिन किया था by the thumb technique, right? That was one particular sound, a particular voice that comes in. But then जब हमें लाइफ में किसी भी तरह का कोई एक्शन लेना है इन टर्म्स ऑफ बिग थिंग्स, जैसे कि हमें गोल सेटिंग करनी है, मुझे बड़े बड़े ड्रीम्स देखने हैं, जब मुझे ऐसी कोई बड़ी चीज अपनी लाइफ में करनी है ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे इन तीनों का बैलेंस में होना इज वेरी जरूरी। द ड्रीमर, द क्रिटिक एंड द एक्शन टेकर, वी नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन देम।
तो अब हाउ डू वी बैलेंस देम, राइट? पहले तो देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि वी हैव फेड देम, इन तीनों को ही खाना हम ही ने खिलाया है, राइट? इतने सालों तक इनको पाल पोस कर इतना बड़ा हमने ही किया है, बाय गिविंग आर थिंग्स, राइट? सो when you really need to balance them, you need to remember that when you were a child, तब तो आप बहुत कुछ देखते थे, लाइक देयर वर पीपल, क्या बनना है आपको? एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे तो पायलट बनना है, मुझे तो प्लेन उड़ाना है, देयर वर सो मेनी थिंग्स, मुझे तो माउंटेन चढ़ना है, एंड पीपल यूज्ड टू लाफ, अरे क्या बोल रहे। बट जैसे जैसे आप बड़े होते गए, तो हमारी प्रोग्रामिंग को ना यूं, ऐसे पहले हमारे ड्रीम्स ऐसे थे, राइट? और फिर धीरे 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 करके ना हमारे ड्रीम्स को ऐसे लगे एक घोड़े की तरह ऐसे कर दिया गया। 10th करो, फिर +2 करो, जो आप अपनी ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेड करो, जॉब करो, शादी करो, बच्चे करो, ऐसे चल रहा है सब, राइट? इधर इधर देखने का टाइम ही नहीं मिलता। और इधर से अगर कभी इधर उधर हो रहे हैं, तो दैट क्रिएट्स अनदर एंजाइटीनेस कि अरे ये तो हो ही नहीं रहा, जैसा बोला जा रहा था वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं, right? So recently, I just I told you my cousins were here, so he has just crossed +2. Okay, so recently when I asked him कि अच्छा what do you want to do, you know, so he has just passed +2 or I think 10th कुछ तो था. So now he had big dreams. Okay, मैंने उसको पूछा कि आपको क्या करना है आगे. So he was like, दीदी मैंने तो ना इतनी बड़ी जॉब करनी है ना, मैंने तो 1 करोड़ कमाना है. And I was like, 1 crore and then still a job. You're getting it? Matlab, are you understanding the kind of programming that we have been given and we are still giving to our children? He was thinking big, but he was not able to come out of that job thing. फंसे हम वहीं पर ही हैं कि जॉब करनी है. मतलब although he had a big thing, big dream कि 1 करोड़ तक मुझे पहुंचना है, but then उस दायरे से बाहर नहीं है वो. Right? And when you come in the money mastery, there even more you will understand this thing that we never think of multiple sources of income. हमें इतना प्रोग्राम करा गया है एक फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर. Now look at women. They have always been given a story that one day some Rajkumar will come into your life, and when you get married to that right guy, only then your life is successful. राइट? और डिज्नी मूवीज आर लाइक दैट, है ना? और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्टेट्स का या एक एरिया ऑफ द वर्ल्ड का कोई मैटर कर रहा है. नो, एवरीवेयर द गर्ल हैज बीन गिवन दिस स्टोरी ओनली कि अ मैन विल कम इनटू योर लाइफ एंड विल टेक केयर ऑफ यू. देयर आर वेरी लेस फैमिलीज, अभी तो चलो बढ़ रही हैं बिकॉज ऑब्वियसली जनरेशनल चेंज है, बट देन इफ वी गो 10 years बैक दिस डिड नॉट एग्जिस्ट. आप डिग्री करो या ना करो मैटर नहीं कर रहा था, बट अ मैन हैज टू कम टू योर लाइफ टू टेक केयर ऑफ यू, द चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग, एंड देन रेपिटेशन रेपिटेशन एंड रेपिटेशन. तो फिर क्या होगा? दैट ड्रीमर गेट्स किल्ड, राइट? वी वांटेड टू डू ऑल दैट वियर्ड स्टफ व्हेन वी वर अ चाइल्ड, बट बड़े होते होते ये ड्रीम्स जो है इनको धीरे 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 कन्फाइन करके किल कर दिया गया था. So the dreamer in you was sadly kind of murdered. The critique, and the critique did that क्योंकि हमने उसको खाना ज्यादा खिलाया, right? The only thing, the only one that you have fed the most is your critique. And mind learns by repetition, right? Mind learns by experiencing. उसके जो beliefs create हो रहे हैं वो experience से ही हो रहे हैं. तो anything which is repeated, it becomes an anchor within us. And anything which is repeated, mind learns by repetition. अब जब टीचर ने बोला एक क्लास में कि बेटा आप मैथ्स नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, देन यू रीच होम, यू टेल मम्मा अबाउट इट कि मम्मा ऐसे ऐसे ना मैम ने मुझे ऐसे बोला फर्स्ट टाइम. नाउ योर मम्मा रिपीट्स इट, ओहो यू आर नॉट एबल टू डू दिस. नाउ द थर्ड टाइम
somebody comes to your place, the child is being discussed, and then mama tells, मैथ्स नहीं अच्छा करता ये, मैथ्स में थोड़ा गड़बड़ है. Now the mind learned कि मैं मैथ्स में बुरा हूं. This is how the program comes into your mind. 3 बार सुन लिया, और जब आप बच्चे हो, by the age of 10, तो वैसे ही सारी प्रोग्रामिंग हो ही रही है, तो तब तो आपके पास वो फिल्टर्स भी नहीं है, तो इट इज डायरेक्टली गोइंग इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. कोई फिल्टर्स भी नहीं है, सीधा अंदर ही जा रहा है, राइट? तो कंप्लीट रेपिटेशन लेड यू हियर. जस्ट अ मोमेंट. Again, where was I? Mind learns by repetition, right? So now, as I said, कि by 10 years तो वैसे भी आपकी प्रोग्रामिंग हो ही गई है, right? और कैसे हुई है? Repetition is the key. किसी भी चीज के लिए. अब आप एफर्मेशंस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एफर्मेशंस कर तो रहे हो, पर जब उनको आप रोज 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 कर रहे हो, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यू आर रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, एंड दैट इज हाउ योर माइंड इज लर्निंग इट, कि अगर ये इतना बोल रही है तो होगा ऐसा. गेटिंग द लिंक नाउ, कि पहले भी जो कुछ लर्न किया वो रेपिटेशन से ही करा. कुछ भी उठाकर देख लो, एबीसीडी भी लर्न की, 1 2 3 4 लर्न किया, रेपिटेशन से ही लर्न करा. और जितना कॉन्सेप्ट नया था, उसकी उतनी ही रेपिटेशन हुई. टेस्ट क्यों होते थे? रिवाइज करो. एग्जाम में जाने से पहले क्या चल रहा है? रिविजन चल रही है. तो वो रिविजन क्या है? रेपिटेशन ही है ना. कॉन्सेप्ट तो हो गया, वो तो फर्स्ट टाइम में ही हो गया. अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो? उसको रिवाइज कर रहे हो, तो रिविजन भी इज ऑल्सो रेपिटेशन. तो कुछ भी जो आप लर्न करते आए हो, और जो आप लर्न कर रहे हो, और आगे भी करोगे, वो रेपिटेशन पर ही डिपेंडेंट है. रेपिटेशन इज द की टू प्रोग्राम योर माइंड, बी इट गुड, बी इट बैड. Totally. राइट? सो अब एक 7-8 साल के बच्चे के कॉन्शियस डेवलप तो होता नहीं है. अब उस टाइम पर, दैट इज व्हाई इट इज सेड कि बच्चा जितना छोटा है, उल्टा यू हैव टू बी इवन मोर केयरफुल ऑफ व्हाट यू से इन फ्रंट ऑफ दैट चाइल्ड. मेरे पास you have to be even more careful of what you say in front of the small babies, क्योंकि उनके फिल्टर्स क्रिएटेड नहीं है, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे. दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट. अगर एक बच्चे के सामने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज हो रही है, I've seen it. Like, I remember one of my friends, he has a school, so he was telling me one day कि अब यहाँ पर मतलब पंजाबी में बात होती है, और उनका स्कूल भी जो है ना एक विलेज में, they opened it for the poor people. So once he was telling us कि हमारे पास एक पेरेंट आया with the child's complaint, मैम सर ये ना बहुत गालियां निकालता है, ये ना बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, ये है वो है. एंड ही सेड कि मैं ना उस पूरी कॉन्वर्सेशन में बाय द एंड ऑफ इट, मतलब आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल माय लाफ्टर. He felt like, what was there to laugh? The parent is complaining you, why were you laughing? He was like, you won't believe. He started the sentence with a gali. ये नहीं करता, ये माई वाई ये. And he is like कि हर 3 वर्ड्स के बाद एक गाली आ रही है, हर 3 वर्ड्स के बाद एक गाली आ रही है. And then he is complaining कि ना ये गालियां बहुत निकालते हैं. And the only thing he said, I could just actually say to the parent was कि sir, आप प्लीज उसकी बात छोड़ो, मुझे तो टेंशन हो रही है, आप इतनी गालियां क्यों निकाल रहे हो? And he was like, मैंने कब निकाली? इतना अनकॉन्शियस एक तो एक पर्सन में जा चुका है. एंड द चाइल्ड वाज लाइक इन ग्रेड 1 or 2 समथिंग, मतलब 6-7 साल का होगा बच्चा. अरे वो कैसे नहीं बोलेगा? आप खुद, आपका हर सेंटेंस एक गाली से शुरू हो रहा है, एंड एवरी थर्ड वर्ड इज अ गाली. एंड पंजाबी में ना, पंजाब में ना वैसे भी लाइक बहुत टिपिकल गालियां चलती हैं.
when it comes to the village side, तो मतलब वो तो मतलब हमें तो कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि what are they saying even, you know. तो ही वाज लाइक मैं क्या समझाऊं आपके बेटे को, आप तो खुद इतनी गालियां निकाल रहे हो, मैं उसको क्या समझाऊं, ऑब्वियसली ही इज लर्निंग इट फ्रॉम यू. एंड ही बिकेम वेरी ऑफेंडेड कि आप क्या ले, मैं आपके पास लेके आया हूँ, आप उसको समझाओ, आप मेरी मेरी वो गलतियां निकाल रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ. सो वो इतना मतलब डिफरेंट एक सिनेरियो हो गया, राइट. तो अ चाइल्ड हु इज वेरी स्मॉल, उसके सामने तो वैसे भी यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. अभी आप अगर एक छोटे से बच्चे को बोल रहे हो तो है ही नालायक. You know, when I heard this thing for the very first time from my mentor, I felt so proud as a teacher because somehow I had this, you know. I used to be so conscious about these things कि मेरे जो colleagues भी होते थे ना, I used to be very much, you know, उनको ये अच्छा नहीं लगता था, मैं उनको बहुत टोकती थी इस चीज के लिए कि यार प्लीज बच्चों के सामने ऐसे मत बोला करो. मतलब द टीचर्स दे डिडंट यूज टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि बच्चा खड़ा है उसके सामने ही बोल रहे हो कि ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, इसकी तो मम्मी भी कुछ नहीं करवाती, इनके तो घर वाले ही ऐसे. मतलब टीचर्स की भी फ्रस्ट्रेशन देखो निकल जाती है. बट आई ऑलवेज यूज टू बी लाइक यार आपस में तुम लोग कुछ भी बात करो, बट देन मेक श्योर कि द चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू इट. यू नो, एंड ऑफ द डे ही इज लिसनिंग टू इट, उसके मन में वो बैठ जाएगी बात. पता नहीं somehow I had this thing. तो my friends used to, my colleagues used to be like यार बस कर, अब वो है ऐसा तो है, उसको पता होना, मतलब वो ना उल्टा हो जाते थे कि पता होना चाहिए उसको कि नालायक है वो, पढ़े ताकि. तो वो बोलती थी उल्टा होगा, वो जितना सुनेगा वो बेचारा और डीमोटिवेट हो जाएगा, यू नो. तो बीइंग टीचर्स, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग बिग एल्डर सिबलिंग्स, वी शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि हमारे सामने स्पेशली जब कोई बच्चे हैं उनके सामने वी शुड नेवर यूज दोज वर्ड्स जो हम चाहेंगे नहीं कि उस बच्चे के मन में कभी. Right? So now the thing that you need to understand is कि देखो everything is a story, everything is an idea, and right now what we are going to do is we are going to balance out these three people in our identity, क्योंकि ये तीनों ही हमारे अंदर identities ही है. So if somebody is there who tells के I am a young angry man, it's because उसको बार बार बहुत बार ये बात बोली गई है. यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो कभी आप सोचकर देखना, हम अपने लिए ऐसी बहुत सी बातें बोलते हैं जो लेटर ऑन हमें रियलाइज होती है कि यार वैसे मैं ऐसी थी नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसी हूँ. यू नो, बिकॉज नाउ यू पीपल आर कमिंग इनटू दैट अवेयरनेस मोड. तो ऐसा बहुत बार आप लोगों को रियलाइज होगा कि यार पता नहीं मैंने किससे सुन लिया था, मतलब कोई मुझे बोल रहा है कि मैं लेजी हूँ, बट समवेयर आई फील कि मैं लेजी नहीं हूँ. यू नो, somebody is telling me कि ये ना हार्ड वर्कर नहीं है, बट आई नो यार आई एम अ डैम हार्ड वर्कर. राइट, कंप्लीट ऑपोजिट थिंग्स. तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर क्यों है, शायद पहले आप अपने लिए कुछ कुछ चीजें बोलते थे एज अ क्रिटिक, बट नाउ यू बिलीव मैं क्यों बोलती थी, मैं वैसे थी नहीं ऐसी. तो इट वॉज नॉट यू, इट वॉज अदर पीपल्स वॉइसेस इन योर हेड्स जो आपकी खुद की आइडेंटिटी बाय डिफॉल्ट बन जाती है. राइट. सो रिमेंबर दैट वट एवर आइडेंटिटी विद इन यू इज, आप कोई भी छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा, कोई भी काम जो अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर आप नहीं कर पा रहे हो, जस्ट रिमेंबर मे बी यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ द क्रिटिक इन. अगर आपका ड्रीमर आपसे बोल रहा है ना कि आप 100 के बना लोगे, आप बना लोगे. सिर्फ ओनली थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि मेरा क्रिटिक जो है ना मुझे उसको ठीक करना है. राइट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, कृतिका को तो आई थिंक थोड़ा आइडिया होगा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नोमिता, हम अपने ही, जैसे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ. सो व्हाट यू हैव टू डू इज इन योर रूम वेर एवर यू आर, आपको जैसे सो देर इज वन सर्कल, देर इज टू सर्कल एंड देन देर इज थ्री सर्कल. इट कुड बी एनी वे, आगे पीछे हो सकता है, इवन यू कैन टेक इट लाइक वन, लाइक two spaces like this and then third circle here. Right. One is for your dreamer, one is for your dreamer, the other one is for your critique, and the third one is for your action taker.
ठीक है, तो आप कोई भी 3 स्पेसेस ले सकते हो। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि देखो जो आपकी बॉडी है ना, वो लोकेशंस को बाय डिफॉल्ट एंकर कर लेती है, राइट? तो द मोमेंट आप अपनी लोकेशन चेंज करोगे, उसके लिए लोकेशन अपने आप बदल जाएगी, राइट? सो लोकेशन क्यों बदलनी है? क्योंकि हमें 3 अलग अलग आइडेंटिटीज विद इन अस से बात करनी है। नाउ द थिंग इज कि देखो यूजुअली क्या होता है, जब आप एक ड्रीम देखते हो तो आपका ड्रीमर और आपका क्रिटिक अक्सर एक ही टाइम पर ना एक्टिवेट रहते हैं। इधर से आप ड्रीम देख रहे हो, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, इधर से क्रिटिक आ रहा है, पर ये तो प्रॉब्लम है, पर ये तो होगा नहीं, पर प्रॉब्लम तो ये आ जानी है, पर ऐसा तो हो जाएगा, नहीं मैं ऐसे कर लूंगा, पर फिर ये हो गया तो नहीं, पर मैं ये कर लूंगा, फिर ये हो गया तो क्या हो रहा है? खिचड़ी पक रही है। इस खिचड़ी के चक्कर में बेचारी जो बॉडी है वो एक्शन टेकिंग पे आ नहीं पा रही है। अब ड्रीमर को पता है, वो बोल रहा है बार बार नहीं तू कर लेगी, ये हो जाना है, पर क्रिटिक आके फिर से मुझे डरा रहा है। तो बॉडी कह रही है भैया चुप कर जाओ, रेप्टिलियन ब्रेन हूं मैं, शांति दो, डिसाइड हो जाएगा आपस में, मुझे बता देना, मैं कर लूंगा। राइट? सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, हम इन तीनों से आज अलग अलग बात करेंगे, एक एक बार में हम तीनों से बात करेंगे। एंड देन वी विल, मैं आपको, अच्छा, कीप योर पेन एंड पेपर रेडी, ठीक है? व्हाट आई विल डू इज, एक एक सर्कल में एक एक बार जाएंगे, ठीक है? एंड आफ्टर दैट हम वहां जाकर मैं आपको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, यू हैव टू जस्ट फॉलो देम। एंड उसके बाद द मोमेंट मैं आपसे बोलूं कम बैक एंड राइट डाउन, जस्ट राइट डाउन एज फास्ट एज पॉसिबल एंड एज मच एज यू कैन। बिल्कुल भी पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। दैट इज, लेट मी टेल यू, आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आप सडनली एक्टिवेट करते हो तो वो बहुत, बिकॉज उसको आदत नहीं है जगह रहने की, ओके? तो इट stays awake for a very short period of time. You have to make sure कि आप इसका मैक्सिमम एडवांटेज ले सको और जितनी भी पॉइंट्स हैं उनको पॉइंटर्स में लिख सको इफ इंपॉर्टेंट। जैसे सपोज देर आर 5 पॉइंट्स, तो उनको अगर एक एक वर्ड में आपको याद रहता है तो सिर्फ वर्ड्स लिख लो ताकि आपको पॉइंट याद रहे। जहां पूरा पॉइंट लिखना है पॉइंट लिख लो, बट राइट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि उस मोमेंट में आप पूरे जागरूक रहोगे। जब जब आप लिखते जाओगे, लिखते लिखते आपको भूलता जाएगा और क्या था और क्या था और क्या था, राइट? सो जस्ट कम बैक एंड कीप राइटिंग डाउन। उस मोमेंट में मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी, बट इट विल बी हार्डली अ स्पैन ऑफ 30-40 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि उससे ज्यादा आपको याद रहेगा ही नहीं। तो हम पहले एक एक करके तीनों में जाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको चेंज कर करके कभी किसी कॉर्नर में, अच्छा, यू डोंट हैव टू एक्चुअली क्रिएट दी सर्कल्स, सिर्फ आपको विजनरी, इमेजिनरी अपने पास देख लेना कि अच्छा, जैसे टाइल्स हैं या ऑलरेडी घर का कुछ तरीका ही ऐसे है फ्लोर का, रखना है तो चाहे अलग से कहीं पे रबड़, कहीं पे कुछ ऐसे रख के 3 अलग अलग स्पेसेस करो। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरी आवाज आप तक पहुंचना जरूरी है, मैं आपको देखूं ये जरूरी नहीं, राइट? और इफ यू पीपल आर ओके, वैसे अब दोनों के फिल्टर्स लगे हुए हैं, फिल्टर्स रिमूव भी करने हैं कर लो, नहीं भी करने हैं तो भी चलेगा, ठीक है? So let me take this in the other recording.